Hello, friends. This is Akshata, your educator. I welcome you all to Teaching Exams by Global Online. As you know, friends, that the Teaching Exams by Global Online has launched a complete series for upcoming CTET 2022 examination. In this particular series, we are discussing about Maths Paper 1. In today's lecture, we will be discussing about the fractions. At the same time, this is the lecture number 5. In last lecture, we have discussed about mathematical operations. We have completed the mathematical operations. We have discussed about the divisibility tests. Okay, जो लेफ्ट आउट डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. एट द सेम टाइम लेट मी डिस्कस यू द कंप्लीट कोर्स विच हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर upcoming central teacher eligibility test 2022, which will be held in December 2022 for paper 1 and paper 2. In this particular course, you will be provided with the full syllabus theory lectures, practice multiple MCQs, mock test, full syllabus notes, and the course fees will be just 2000 rupees. So for that, you have to just go and download the Global Online app or contact us on this given WhatsApp number. If you like seriously follow this complete course either for paper 1 or paper 2, we will guarantee you that you will score the maximum marks and get selected for the central teacher eligibility test entrance 2022. So basically, for as we know that for CTET there are two papers, that is course 1 for paper 1 and paper 2, right? There are two papers, right? So basically for this we have launched two different courses. For paper 1 there will be different course, and for paper 2 there will be the different course. Okay, so students who are going for the paper 2, for them also the complete course has been launched. In this series we will be discussing about the full syllabus theory lectures. Okay, practice multiple MCQs, mock test, full syllabus notes, and the course fees will be again just of 2000 rupees. So you have to go and download the app and contact us on the given WhatsApp number for enrolling the course. At the same time, there are some students who will be opting for paper 1 and paper 2 also. For them again the same course has been launched. It will be a combined course in which full syllabus theory lectures, practice multiple MCQs, mock test, full syllabus notes, and the course fees will be of just 3000 rupees. So basically you have to simply contact us, and we will guarantee you that you will score maximum marks and get selected, because this course is very much important if you have or if you wish for selection in the central teacher eligibility test exams. Okay, so इसके अंदर जो है आपका प्रैक्टिस बहुत बारी किया जाएगा. ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो है काफ़ी तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में प्रैक्टिस किए जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग एग्जाम वो सभी क्लियर किए जाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच. ओके, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को इक्वली जज करते हुए हम यहाँ पे सभी चीज़ें स्क्रैच से पढ़ाएंगे. किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं इन दिस कंप्लीट कोर्स. सो बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग फॉर पेपर 1, जस्ट गो फॉर दिस कोर्स. इफ सिर्फ पेपर 2 के लिए जा रहे तो ये कोर्स आप ऑप्ट कीजिए. ऑफ इफ़ यू आर गोइंग फॉर पेपर 1 पेपर 2, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फीस रहेगी सिर्फ 3000 रुपीज़ रहेगी. एट द सेम टाइम कंप्लीट सिलेबस कवरेज जो है एग्जाम ओरिएंटेड वो किया जाएगा. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर लाइक डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक फॉर सेट नेट, तो उसका प्रिपरेशन भी जो है ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करवा के लेता है. इसके अंदर जो है आपको ग्लोबल ऑनलाइन ये ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से. सो इंटरफेस दिखेगा इस टाइप का. इसके अंदर स्टोर इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और कोर्सेज इस पेज के ऊपर जाएंगे. यहाँ पे सर्च बार दिखेगा डिफरेंट कोर्सेज. So in this way the global online platform is providing you different coaching जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कम फीस के अंदर मैक्सिमम जो है स्कोर करने का मौका है. एंड द फैकल्टी इज़ टू गुड. यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं टीचर्स के साथ. सो बेसिकली दिस विल बी लाइक टीचर एंड स्टूडेंट कम्युनिकेटिंग प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके सभी डाउट्स जो है क्लियर किए जाएंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबल ऑनलाइन, एंड आई विल बी टेलिंग यू अगेन कि ये कोर्स जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्ज़ाम में. सो आज के लेक्चर में जो है हम फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है कल हमने 6 तक पढ़ी थी, राइट? सो हम एक एक करके से कुछ कल के लेक्चर तक डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है कंप्लीट करवा देंगे. कल के लेक्चर में 6 तक हुई थी, आज के लेक्चर में है हम ऑलमोस्ट आई गेस 11 तक
करवा देंगे और फिर कल के लेक्चर में जो है 13 तक जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो हमें याद में रखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट जितना वो उतना हम करवा के लेंगे। कल के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने स्टार्ट किया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। उसके अंदर हमने बोला था कि किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 1 के लिए। सो बेसिकली इफ़ वी आर गोइंग फॉर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 देन देर इज़ नो सच रिक्वायर्ड रूल और कंडीशन फॉर divisibility rule of 1. Basically any number is divisible by 1, any number is divided by 1 by or by the number itself. So basically divisibility rule of 1 काफ़ी ज़्यादा बेसिक था। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में हमने देखा था कि अगर कोई नंबर दिया है उसके अंदर हम लास्ट के डिजिट्स चेक करेंगे वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है इन लाइक 0, 2, 4, 6, 8 अगर इस तरीके से इवन नंबर आएंगे तो वो जो नंबर रहेगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 सिंपली क्या बोलता है, नंबर देखना है हमें और नंबर के एंड के डिजिट जो है अगर वो इवन रहेंगे देन दैट इज द डिविजिबल बाय 2। सो बेसिकली इन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 व्हाट वी हैव सीन, इफ अ नंबर इज गिवन we have to simply check number's last digit. If the last digit is even then the number is divisible by 2. This was all about the divisibility test of 2, right? Divisibility rule for 3, what we have seen, any number is given, that number how we have to verify it, we have to simply sum each digit given in that number, right? For example 308 was the number, हमने क्या किया 3 किया 0, 3 plus 0 plus 8 किया, we have to check the summation and after checking the summation if the number whether the number is or whether the sum is divisible by 3 or not, ये चीज़ चेक करनी थी हमें, ठीक है। अगर वो समेशन जो आया है इट इज़ डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। व्हाट इज द सीन इन द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, द नंबर गिवन वी हैव टू टेक समेशन ऑफ ईच डिजिट ओवर देयर, right? First rule. Second rule, whatever the summation comes out or derives we have to divide it by 3. If it is divisible by 3 completely then that number is following the divisibility rule for 3, right? So basically it will be divisible by 3, but if that number is not divisible by 3 it does not follow the divisibility rule for 3. This was the basic thing we have seen, the divisibility rule of 3. In divisibility rule of 4 what we have seen, last two digits we have to check, okay? For example the number given here was 2308, we have checked the last two digits was 08 over here, okay? 08 was the last two digits is whether these two digits are divisible by 4 or not, this thing we have to check out, right? So basically in divisibility rule of 4 हमें क्या करना है, नंबर का लास्ट 2 डिजिट देखना है, अगर वो 2 डिजिट 4 से divisible है then that number will be divisible by 4. This is all about the divisibility rule of 4. In divisibility rule of 5 what we have checked, नंबर दिया है कोई भी नंबर, अगर नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है, if the last digit of the number is either 0 or 5 then that the number is divisible by 5. This was the divisibility rule of 5. In divisibility rule of 6 what we have seen, we have to apply the divisibility rule of 2 and 3 over here, okay? So basically any number is given and asked us to check whether the number is divisible by 6 or not, what we have to do, we have to check here two divisibility rules, one is divisibility rule of 2 and another one is divisibility rule of 3, right? So the number 630 in case of divisibility rule of 2 what was it, divisibility rule of 2 क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट देखना है हमें कि ऑड है या इवन है, अगर इवन है इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो 630 के अंदर 0 इज एन इवन नंबर, right? So basically 630 is divisible by 2. whether 630 is divisible by 3 or not ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 plus 3 plus 0 करना पड़ेगा, समेशन क्या आ रहा है 9, so 9 अगर 3 से divisible है then this number will be divisible by 3, right? So 6 plus 3 plus 0 किया 9 by 3 आया, so 3 आया आंसर, राइट? सो ये डिविजिबल बाय 3 था, 9 by 3, सो बेसिकली 630 डिविजिबल बाय 3 भी है, सो इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो एंड 3 ऑल्सो देन दैट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6. दिस वॉज ऑल अबाउट द 6. नाउ मूविंग ऑन टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, 8, 9, 10 और 11. इसके अंदर हम चेक करेंगे एक एक करके, ठीक है?
शॉर्ट में चीज़ें पढ़नी है, हमें ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाना है, बट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 जो है ये हमें ध्यान में एक एक स्टेप रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 शुड नॉट बी मेड कॉम्प्लिकेटेड, ओके। इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है हमें। इसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया है, नंबर का लास्ट डिजिट रिमूव करेंगे। नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 3 है। सो 3 को साइड में ले लिया, ठीक है। वी हैव टेकन 3, वी हैव रिमूव्ड द 3 राइट फ्रॉम द नंबर। नाउ वी हैव टू डबल द नंबर। अभी ये जो 3 नंबर हमने साइड में लिया है इसको डबल करना है, ओके। 3 + 3 करवा दिया, क्या आ गया, 6। What we are doing over here is in the first step, 1073 is the number, we have to remove the last digit. Last digit remove किया, we have to double the last digit. So basically 3 + 3 किया, क्या आ गया, 6 आ गया। इसको डबल कर दिया हमने। अभी जो कुछ भी डबल आया ना नंबर, उसको रिमेनिंग नंबर में से सब्सट्रैक्ट करना है। रिमेनिंग नंबर क्या है, 107। सो 107 - 6 किया, ये हो गया स्टेप नंबर 1, लास्ट डिजिट का डबल किया। सेकंड स्टेप में क्या किया, रिमेनिंग लेफ्ट आउट नंबर में से जो कुछ भी समेशन आ रहा है डबल करने के बाद उसका क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। वो नंबर रिमेनिंग नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है। सो बेसिकली 107 - 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 101। नाउ रिपीटिंग द प्रोसेस 1 मोर टाइम, मतलब यहाँ से 101 अभी ये जो नंबर है इसके साथ भी यही प्रोसेस करनी है, राइट। हमने क्या किया, 1073 किया, 73 का 3 लास्ट डिजिट था, 3 को डबल किया, आ गया 6। 6 को सब्सट्रैक्ट किया लेफ्ट आउट नंबर में से। सिमिलरली यही प्रोसेस 101 के साथ फॉलो करनी, दैट इज़ अभी फॉर एग्जांपल 101 नंबर है, 101 का लास्ट डिजिट लिया 1, 1 को डबल किया, ठीक है। 1 को क्या किया हमने, डबल किया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। 1 को डबल किया, 2 आ गया। सो रिमेनिंग नंबर क्या है, अभी यहाँ पे 10 है। सो 10 - 2 किया, क्या आ गया, 8। सो बेसिकली इस 10 में से ये 2 को सब्सट्रैक्ट किया हमने, राइट। सो नाउ लुक, व्हाट इज द नंबर कमिंग ओवर हियर, 8। एज 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, अभी जो कुछ भी नंबर आ रहा है यहाँ पे 8, सो बेसिकली 8 जो है वो 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। सो बेसिकली 1073 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 में हमें क्या करना है, जो कुछ भी नंबर दिया है, वंस अगेन आई विल रिपीट द प्रोसेस। 1073 नंबर है, 1073 में लास्ट डिजिट क्या है, 3, 3 को डबल करवा दिया, आ गया 6। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप क्या थी, रिमेनिंग नंबर में से 6 को सब्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 101 आ गया। यही प्रोसेस 101 के साथ रिपीट करनी है, राइट। 101 का लास्ट डिजिट क्या है, 1, 1 को किया डबल, आ गया 2, राइट। सो 10 लेफ्ट आउट नंबर क्या है अभी यहाँ पे, 10, 10 - 2 किया, दैट विल बी 8। सो बेसिकली 8 इज 8 डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ये चेक करना है हमें। 7 से डिविजिबल है क्या, 8 नहीं है। सो बेसिकली दिस नंबर 1073 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। ये इस तरीके से हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 चेक करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर 8। इस चीज़ के अंदर हमें क्या देखना है अभी इस डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 चेक करने के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नंबर लिया है, ठीक है, कोई भी नंबर। इस नंबर के अंदर हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं, ठीक है। अगर लास्ट तीनों भी डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 आ रहा होगा, देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे था 3 डिजिट नॉट 2 डिजिट, ओके। लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने। अभी इस नंबर में 2 4 3 4 4 में लास्ट 3 डिजिट्स कौन से, 3 4 4, ठीक है। 3 4 4 डिविजिबल बाय 8 है या नहीं, ये चेक करना है। अगर 3 4 4 इज डिविजिबल बाय 8, सो बेसिकली ये पूरा नंबर क्या रहेगा, डिविजिबल बाय 8 रहेगा। ये हो गई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, वेरी सिंपल। लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने, तीनों भी डिजिट्स अगर 8 के साथ डिविजिबल है, then the number is divisible by 8, very simple. Moving on to the next divisibility rule for 9. Divisibility rule for 9 क्या बोल रहा है, it is similar to that of divisibility rule of 3. Basically 3 के divisibility rule में क्या किया था, हमने पूरा summation लिया था। जो कुछ भी नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल 4 7 3 8 दिया होगा नंबर, तो 4 किया प्लस 7 किया प्लस 3 किया प्लस 8 किया, वही चीज़ यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर दिया है, इस नंबर का समेशन करना है, 7 + 8 + 5 + 3 + 2, राइट। तो यहाँ पे
समेशन क्या आ रही है 25. सो इज 25 डिविजिबल बाय 9 और नॉट, वी हैव टू चेक. इन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 वी आर फॉलोइंग द सेम steps which we have followed in the divisibility rule of 3. What we are doing over here is we are taking sum of all the digits given in the number and we are checking whether the number is divisible by 9 or not. If it is divisible by 9, so basically the number is following the divisibility rule of 9, the number is divisible by 9. ये हम बोल सकते हैं. जो कुछ भी नंबर दिया है उसका समेशन कीजिए, सम कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है आपका उसको डिविजिबल बाय 9 करके देखिए. अगर वो 9 से डिविजिबल है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. इफ नॉट, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. दिस वॉज अ सिंपल रूल. सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 सेम रहेगा. ठीक है. नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 में एक सिंपल चीज़ फॉलो करनी है आपको. इसके अंदर एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज ज़ीरो, कोई भी नंबर दिया उसका लास्ट डिजिट अगर ज़ीरो है देन दैट इज़ डिविजिबल बाय 10. बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में हमने क्या देखा था कि लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 में हमने क्या देखा, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. सिर्फ सिंपल यही बेसिक चीज़ें थी. अभी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, इसके अंदर हम एग्जाम्पल देख के पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया 2143. ये नंबर हमें चेक करना है वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट. वी हैव टू चेक दिस नंबर इज वेदर डिविजिबल बाय 11 और नॉट. फॉर दिस वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज वी हैव टू लाइक नेम द ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस. ठीक है. हमें ऑड प्लेसेस कौन सी है और इवन प्लेसेस कौन सी है हमें पता होना चाहिए. अल्टरनेटिव डिजिट्स के फॉर्म में ऑड इवन करके हमें डिजिट्स को ग्रुपिंग करना है. ठीक है. किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईच ग्रुप. नाउ हियर 3 and 1 इसको ग्रुप कर दिया हमने. 2 और 4 को ग्रुप कर दिया. ठीक है. इसका समेशन क्या आएगा, 2 + 4 = 6, 1 + 3 = 4. ये किस तरीके से लिया मैंने, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के हमने क्या लिए, सम लिए. राइट. दिस इज हाउ वी आर टेकिंग. नाउ हमको क्या करना है, जो कुछ भी समेशन आ रहा है उसको सब्सट्रैक्ट करना है. ठीक है. डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन सम का डिफरेंस क्या आएगा, 6 और 4 समेशन आया, इसका डिफरेंस क्या आएगा 2. राइट. इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, क्या चीज़ें फॉलो की है हमने, नंबर दिया, नंबर के ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की समेशन ली, दैट इज़ 2 + 4 किया एंड 1 + 3 किया. ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की क्या ली हमने, समेशंस ली. सो समेशन लेने के बाद जो कुछ भी समेशन आ रहा है उसका डिफरेंस लिया हमने थर्ड स्टेप के अंदर. अगर वो डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11 इट मीन्स दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. सो यहाँ पे 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. सो बेसिकली 2143 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11. अभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में काफ़ी कुछ कंडीशंस है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे. सिर्फ अभी आपको एक ध्यान में रखना है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का समेशन लेना है. समेशन लेने के बाद जो भी समेशन आ रहा है उसका डिफरेंस लीजिए. डिफरेंस लेने के बाद whether to check the number is divisible by 11 or not, we have to टेक द डिफरेंस को डिवाइड बाय 11 करके देखिए. अगर वो डिविजिबल है देन इट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, एल्स नॉट. ओके. इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 चेक करते हैं. इसके अलग अलग कंडीशंस है जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि आज हमें फ्रैक्शंस पढ़ना है. सो बेसिकली कल डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो रूल्स है वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे और हम फिर से रिवाइज करेंगे. ठीक है. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन. अभी फ्रैक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे. अभी मैंने यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं कुछ, यहाँ पे आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट करके चीज़ें पढ़नी है एक बार. ये कुछ ज़्यादा नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट कैसा रहता है मैथ्स में, चीज़ों को समझिए आप कि एक एक करके क्या फ्रैक्शन में हमको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रैक्शन. व्हाट इज़ फ्रैक्शन? सिंपली व्हाट वी कैन से, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल. एक होल का कम स्मॉल पोर्शन हम बोल सकते हैं, स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे. फ्रैक्शन इज व्हाट, फ्रैक्शन इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल. एक कंप्लीट चीज़ का थोड़ा सा पोर्शन जो रहेगा वो क्या बोलेंगे, हम उसको फ्रैक्शन बोलेंगे. इट रिप्रेजेंट्स वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ होल ऑब्जेक्ट.
ओके, सो बेसिकली मैं जो चीज़ें बता रही हूँ अब शॉर्ट में लिख लीजिए, इतने ज़्यादा नोट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. फ्रैक्शन बोले तो क्या, इट इज़ व्हाट डज अ फ्रैक्शन मीन्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल एंड बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स वन और मोर equal parts of the whole object. This is first point. Second point, what we can write about the fraction, it represents one or more equal parts of an object. So this is what we can write about the fraction, or just we have to keep in mind fraction bole to it is a part of whole and it represents one or more equal parts of an object. So moving on, हाउ इज़ द फ्रैक्शन एक्चुअली डिनोटेड, किस तरीके से हम फ्रैक्शन को डिनोट कर सकते हैं वो देखेंगे अभी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर 3/4 इज अ फ्रैक्शन. Okay, 3/4 is a fraction. Now here 3 is the numerator. What is 3? 3 is the numerator. Okay, and 4 is what? 4 is what? Denominator. Okay, so here 3/4 इसके अंदर 3 is what? 3 is the numerator. 4 को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. और ये बाय जो बोलते हैं हम, ये वाला सिंबल इसको क्या बोलेंगे? इस तरीके से लिख सकते हैं 3/4 या 3/4 ये जो लिखते हैं हम. तो ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, सॉरी, इसको जो है हम बोलेंगे, we will call it divisor bar, or we can call it fraction bar. ओके, सो 3/4 के अंदर 3 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है एंड उसको हम क्या बोलेंगे? वो जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम उसको डिवाइजर बार या फिर फ्रैक्शन बार बोलेंगे. अब फ्रैक्शन, इसीलिए हम फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ, फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेट. एक सेट है, फ्रैक्शन क्या हो सकता है? ये एक कंप्लीट छोटा सा पार्ट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल हम, तो ये फ्रैक्शन क्या हो सकता है? इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेट. अब ये चीज़ें समझ आएगी एग्जाम्पल के तौर पे. मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल देती हूँ. काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, बचपन में हम पढ़ते थे. फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 रेड बॉटल्स, ओके, एंड 1 बॉटल इज ग्रीन बॉटल. सो बेसिकली टू रिप्रेजेंट दिस डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं दैट 3 बॉटल्स आउट ऑफ 4 बॉटल्स आर रेड. 4 बॉटल में से 3 बॉटल्स कैसे रेड? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन? हम बोल सकते हैं 3 बॉटल्स आर रेड आउट ऑफ 4 बॉटल्स में से 3 बॉटल्स कैसे रेड है? सो दिस इज डिनोटेड एज 3/4 ऑफ बॉटल्स आर रेड. बेसिकली ये डायग्राम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 4 बॉटल्स है, 4 में से 3 रेड है, एक ग्रीन है, उसमें से हम क्या बोलेंगे? 3/4 ऑफ द बॉटल्स आर रेड इन कलर. सो बेसिकली इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करवाते हैं. इसमें से 3 जो है न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है, और ये क्या हो गया? फ्रैक्शन बार हो गया बीच में का. नो, अभी फ्रैक्शंस क्या है क्या नहीं हमें पता चल गया. फ्रैक्शंस क्या है? पार्ट है, हम बोल सकते हैं एक होल का पार्ट है. एट द सेम टाइम इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन बार. ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी थी, वो हमने रखी. अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी पढ़ के एक बार देखिए. नाउ अभी हमें चीज़ें क्या पढ़नी है फ्रैक्शन के अंदर? फ्रैक्शन के अंदर हम फर्स्ट चीज़ वो पढ़ेंगे दैट इज़ यूनिट फ्रैक्शन. अभी यूनिट फ्रैक्शन क्या है? लेट्स सी, let me create the note now. Unit fraction, let us study what is unit fraction. Unit fraction बोले तो क्या? Okay, unit fraction मतलब fraction having 1 as numerator for, मतलब क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शन अगर दिया है, अगर उसके अंदर न्यूमरेटर मैंने बोला था ऊपर वाला पोर्शन, राइट, ऊपर वाला नंबर. फॉर एग्जांपल 1/8 बोल रहे तो 1 क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में अगर 1 है, अगर न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, बेसिकली न्यूमरेटर में अगर एक
यूनिट आ गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे. एनी फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है, ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन के बारे में. अभी दूसरी चीज हम जो पढ़ेंगे दैट इज लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन इट मीन्स fractions having same denominator are called as like fractions. Okay, fractions with same denominator are called as like fractions, and fractions with a different denominator are called as unlike fractions. For example, पे पढ़ेंगे that is example 1/17, 2/17, 3/17. in this what we are seeing, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लाइक फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सबका डिनोमिनेटर 17 17 17 है. सो बेसिकली इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस. और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिफरेंट डिनोमिनेटर, 2/18 है फॉर एग्जांपल, 3/17 है, 3/14 है. सो बेसिकली ये वाले जो फॉर्म्स है उसको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे. फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शंस. ये हो गया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में. नाउ इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अगर हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस आर ऑफ basically proper fraction. Very first type in types of fraction is proper fraction. Now what is a proper fraction? A fraction in which numerator is less than that of the denominator. For example, we are taking 2/8. Okay, here what we can see is 2 is smaller, 2 is less than that of 8. राइट. सो बेसिकली यहाँ पे 2 जो है 8 से छोटा है. न्यूमरेटर में जो हमने लिया वो अगर संख्या डिनोमिनेटर से छोटी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन. मूविंग ऑन टू सेकेंड टॉपिक, second type of fraction, that is improper fraction. So basically in this what we'll be seeing is numerator is greater than that of the denominator. What we have seen in proper fraction, denominator is greater than that of the numerator. Okay, so इसका example अगर हमें लेना है 19/7 for example. Okay, so this fraction is the improper fraction because here numerator is greater than that of the denominator. Okay, right. अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और एक कंडीशन, ये कंडीशन हो गई दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का जो संख्या है वो डिनोमिनेटर की संख्या से बड़ा है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और एक कंडीशन रहती है दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी इक्वल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 4/4 लिया हमने, हियर 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 और 4 क्या इक्वल है. सो बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल आ रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, जो न्यूमरेटर रहता है वो छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा एक केस में, और दूसरे केस में हमने क्या देखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल रहना विल बी ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ थर्ड टाइप ऑफ द फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? ओके, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर हम जिसको बोलते हैं, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड नंबर भी बोलेंगे. ठीक है, मिक्स्ड नंबर ये क्या होता है, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे. लुक एट द एग्जाम्पल. इफ वी आर कंसिडरिंग दिस 3 कंप्लीट सर्कल्स. ओके, इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट. तो मैंने क्या किया, इसको कलर करना स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट सर्किल को, इसके फर्स्ट पार्ट को किया, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया. बेसिकली एक सर्कल को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में. तो यहाँ पे 4 भी पार्ट्स को मैंने क्या किया, कलर किया. इस पर्टिकुलर सर्कल में मैंने पूरे पार्ट्स को भी कलर कर दिया. ठीक है, इस तरीके से.
ठीक है। सो द लास्ट सर्कल में मैंने क्या किया, पूरा नहीं कलर किया, 2 ही पार्ट्स को कलर किया, ठीक है। सो अगर मेरे को यहाँ पे इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट ऑल द सर्कल्स विच आर कलर्ड का सर्कल्स जितना है वो फाइंड आउट करना है, कितने सर्कल्स कलर्ड है। सो यहाँ पे बेसिकली अ कंप्लीट सर्कल इज कलर्ड, यहाँ पे भी कंप्लीट सर्कल इज कलर्ड, बट यहाँ पे व्हाट वी कैन फाइंड इज ओनली द हाफ ऑफ द सर्कल इज कलर्ड, राइट। सो बेसिकली हाफ वी कैन टेक. So what I can write for this is 2 plus half, right? So 2 plus half can be represented as 2 and half. So what we can say in this diagram, what we can say is 2 and half of the circles are colored. Out of 3 circles, 2 and half of the circle is colored, right? So basically this is the mixed fraction, जहाँ पे 2 is what? 2 is natural number. 2 is a natural number. 2 is a natural number, right? 2 is a natural number and half is what? Half is a fraction. 2 is the natural number. 2 is natural number and half is fraction. So basically 2 and half is called as mixed fraction, where we are taking sum of a natural number 2 and fraction half. So how we can define the mixed fraction? Mixed fraction is defined as sum of natural number, sum of the natural number and proper fraction. Sum of natural number and proper fraction is called as mixed fraction. Okay, this is all about the mixed fraction. मतलब 2 plus half is equals to sum of natural numbers और proper fraction. इसको हम 2 and half भी बोल सकते हैं, right? So this was all about the mixed fraction. Now we will see some of the examples now. Okay, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं हम और related to the fractions. यहाँ पे देखो, इसके अंदर changing एक क्वेश्चन लेते हैं, चेंजिंग अ मिक्स्ड नंबर टू एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चेंजिंग अ मिक्स्ड number into improper fraction. What we have to do here is we have to change a mixed fraction into improper fraction. Then what things we have to follow? For that we'll take an example. For example, the question is convert 5 3/9 in an improper fraction. So basically 5 3/9 is what? 5 3/9 is what? This is a mixed fraction. This is a mixed fraction. Now we have to convert 5 3/9 into improper fraction. For that, what is the formula? I'll tell you. आपको सिंपली फॉर्मूला क्या करना है, दिमाग में रखना है, ये चीज़ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं एक्चुअली. नेचुरल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. अभी ये हो गया फॉर्मूला. हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है. हमें क्या करना है, 5 3/9 दिया होगा तो हमें फर्स्ट बेसिक चीज़ यहाँ पे क्या फॉलो करनी है, 5 × 9 करना है, ठीक है. 5 × 9 करना, दैट इज नेचुरल नंबर इंटू डिनोमिनेटर. नेचुरल नंबर इंटू डिनोमिनेटर क्या, नेचुरल नंबर क्या है 5 है, डिनोमिनेटर क्या है, एक्चुअली नंबर कैसा है 5 3/9 है, ठीक है. यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है 5 है, डिनोमिनेटर है 9, न्यूमरेटर है 3. फॉर्मूला क्या बताया, 5 इंटू दैट इज नेचुरल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. सो बेसिकली अगर किसी भी प्रकार का ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा तो हमें क्या करना है, 5 × 9 करना है और ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है इसको ऐड करना है, ठीक है. इस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो करनी है, ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 × 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9. सो यहाँ पे क्या आएगा, 5 9 45 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9. सो दिस विल बी 48/9. सो 48/9 इज नॉट डिविजिबल, सो दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बोला था न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 48 है, डिनोमिनेटर छोटा है. सो बेसिकली हमने क्या किया, 5 9/3 जो था 5 3/9 को किस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से. किसी कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 7 3/2
सो बेसिक स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, 7 इंटू 2 करना है प्लस 3 करना है डिवाइडेड बाई 2 करना है, 7 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये स्टेप। अब ये काफ़ी बेसिक चीज़ है बट हमें ये पढ़नी है। 14 plus 3 17 by 2. So this is how we will convert the mixed fractions into the improper fractions. Now moving on to the next example. दूसरी कंडीशन। अब अभी पहली कंडीशन में हमने क्या किया था, we have converted the mixed fraction into, this was the first condition, we have changed the mixed number into the improper fraction, right? Now what we will be doing, we will convert improper fraction into mixed number, right? We'll convert the improper fraction into mixed number. For that, what will be following? Now look, for example, we are taking 9 by 2. 9 by 2 is improper fraction. Improper fraction, as I told you, numerator is greater than that of the denominator, right? So here we have to convert it into the mixed number, right? So I can write 9 by 2 like this, right? So 2 4s are 8, रिमाइंडर में क्या आया, 1 आया, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज 4 इज व्हाट, 4 इज व्हाट, 4 इज क्वेश्चन, ओके। सो मिक्स्ड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, मिक्स्ड नंबर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है। अभी यहाँ पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज 2, राइट, डिवाइजर इज 2, 9 is dividend, right? 9 is dividend and 2 is divisor. So mixed number को किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे, क्वेश्चन आया है 4, राइट, क्वेश्चन आया है 4, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 1, और डिवाइजर क्या है अपना, डिवाइजर क्या है 2 है। दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड, ओके। सो बेसिकली दिस, ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। 4 + 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 1/2। सो दिस इज द मिक्स्ड नंबर। सो बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड नंबर। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज कन्वर्टिंग द मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, 3/5 + 4/7 एडिशन है, ये एडिशन ऑपरेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, चीज़ें सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू हियर इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी 3/5 + 4/7 है, न्यूमरेटर तो सेम नहीं है, न्यूमरेटर अगर सेम रहते तो हम डायरेक्टली एडिशन करवा सकते थे। न्यूमरेटर, if the numerator was same, we could add the numbers directly, right? We could add the fractions directly, but we cannot add over here. So basically what we have to do, we have to make the denominator same. For making the denominator same, what we can do is we can cross multiply the stuffs, cross multiply the numbers, 4/7. So multiply 3 with 7, 5 with 4 and multiply 5 with 7. This is the basic steps, basic maths है काफ़ी ज़्यादा। 7 3s are 21 plus 5 4s are 20 divided by 5 7s are 35. So basically answer will be 41/35. कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, बेसिक एडिशन थी, न्यूमरेटर सेम नहीं है। जब न्यूमरेटर सेम नहीं होते हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नॉट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, एज वी नो डिनोमिनेटर इज 5 and 7। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस का और डिनोमिनेटर को सेम करवाएंगे। दिस इज हाउ वी डिराइव द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 7/8 minus of 2/9. If this is the question, what we have to do again, we have to check the denominator. Is the denominator same? Denominator same है क्या, नहीं, एक का denominator 8 है, एक का denominator 9 है। So basically यहाँ पे denominator same करना पड़ेगा। Again what we have to do here, we have to cross multiply, right? We'll multiply 8 with 2, we'll multiply 7 with 9 and we'll multiply 8 with 9. Okay, so क्या आएगा, 7 9s are 63, 8 2s are 16 divided by 8 9s are 72. So this will be 47/72. In this way we'll solve the answer. कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके मुझे पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 + 5/3 है, -7/2 किया।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी ये फॉलो कैसा करना है, डिनोमिनेटर चेक कीजिए, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट अगेन, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो अभी हमें यहाँ पे चीज़ क्या करनी है, डिनोमिनेटर जब कभी हमें सेम करना है, हमें देखना है बिगर नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, 4 का टेबल रीड करना है। 4 1 4, 3 के टेबल में है क्या 4? नहीं है। 2 के टेबल में है क्या 4? नहीं है। 4 2 8, 8 है। 8 नंबर 3 के टेबल में है? नहीं है। 2 के टेबल में है। बट हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो तीनों के टेबल में रहेगा। ठीक है, 4 के भी टेबल में, 3 के भी टेबल में और 2 के भी टेबल में, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे 8 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 3, it is in the table of 2, but we have to find a number which is in the table of all 3 of the denominators, right? So basically if we go for 4 3s are 12. Okay, so 12 is a number which is in the table of 3 also and in the table of 2 also, so we can go for denominator 12, right? 12 के denominator को जा सकते हैं। 4 3s are 12 है, 3 4s are 12 है और 4 6s are 12 है। जब कभी हम एक नंबर से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रूल फॉलो करना है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया या नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। दैट इज़ 4 × 3 किया, अभी हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, राइट, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, सो बेसिकली हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 से किया, ऊपर भी 4 से करेंगे। यहाँ पे 6 से किया, ऊपर भी 6 से करेंगे, राइट। सो दिस विल बी 9 + 5 4 20 minus of 7 6 42, राइट। दिस इज द स्टेप फॉलोड ओवर हियर। हमने यहाँ पे क्या किया, क्या चीज़ फॉलो की, क्वेश्चन क्या दिया था, 3/4 + 5/3 + 7 सॉरी -7/2। डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करते हुए 12 लिया, ऊपर क्या आएगा फिर 3 3 इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट, सो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ 3 4 किया 12, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस 5 4 20, माइनस नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 6 42। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर विल बी 29 सॉरी 9 + 20 29, 29/12 minus 42/12. So answer will be -13/12, right? This is how we solve the questions. Now moving on to the next question. मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे 3/5 किया इंटू 7/2 किया, राइट, 3/5 इंटू 7/2। नाउ व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो हियर, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर सेम करते बैठना नहीं है हमें। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इधर द डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट, doesn't matter. What we have to do is directly multiply the fraction. 7 3s are 21 and 5 2s are 10. In this way, this is the answer to the question. Okay, next question, 24/27 into 45/30 is the question over here, right? So यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8/9 लिख सकते हैं, इंटू 9/6 लिख सकते हैं, राइट। ये कैसे लिखा हमने, इसको सिंप्लीफाई किया, 3 8s are 24, 3 9s are 27, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया, 5 9s are 45, 5 6s are 30, राइट, इस तरीके से। So what will be the answer over here? Answer will be 9 9 तो कैंसिल हो सकता है, राइट। 8/6 that is 4/3 is the answer to the question. In case of addition हमने क्या देखा था या subtraction देखा था कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन there is no need for making the denominator same, directly multiplication हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने लिया 56/77 into 35/40 is the question, right? What we have to do here is हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 6 are 56, 7 11 are 77, राइट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 7 are 35 एंड 5 8 are 40। वी कैन सिंप्लीफाई इन दिस वे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 7 7 कट होगा, 5 5 कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 6/11 इंटू 7/8। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम, देख लीजिए, दिस इज 7 8 are 56, राइट। सो यहाँ पे 7 8 आएगा, सो बेसिकली यहाँ पे 8 आएगा, राइट। 8 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 7/11। सो इस तरीके से क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई टेक फॉर डिवीजन नाउ, 4/3 लिया डिवाइडेड बाय 4/3 डिवाइडेड बाय 9/5 इज द क्वेश्चन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट।
क्या किया हमने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके गए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आए और डिवीजन का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में करवाया। हम इस तरीके से कर सकते हैं इन केस ऑफ डिवीजन। व्हेनेवर डिवीजन का क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन इंट्रोड्यूस करना है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर करना है। ओके ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 20/27 विल बी द आंसर। 5 4 जार 20 एंड 3 9 जार 27। In this way how we solve the division वाले questions in the case of fractions, right? एक question दिया for example 36/54 divided by if you take 64/48, तो यहाँ पे क्या आएगा, 36/54 डिवाइडेड बाय 64/48 ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, राइट? सो इसको हम लिखेंगे 36/54 इंटू 48/64। बेसिक मैथ्स यू हैव टू फॉलो हियर। व्हाट विल बी डूइंग, 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 6 से डिवाइड किया, 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 6/9 लिख सकते, राइट? नेक्स्टली यहाँ पे क्या कर सकते, 6 8 6 ज़ा 48 और 8 8 ज़ा 64, इसको मैंने लिखा 6/8 लिख सकते, यस, राइट? सो और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 लिख सकती हूँ मैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 लिख सकती हूँ, राइट? सो 2/3 इंटू 3/4, अगेन 3 3 गेट कैंसल्ड, व्हाट इज द आंसर, 2/4। 2/4 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द डिवीजन। सो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे। ये क्वेश्चन था, ओके ये क्वेश्चन था डिवीजन वाला। एक एक करके आप जो है स्क्रीनशॉट करवा के लीजिए जितने भी हमने क्वेश्चंस छोड़ाए। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस जो है छूट गए पीवाईक्यूज, हम वो सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट हमने फ्रैक्शन रिलेटेड पूरी चीज़ें पढ़ ली है। डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है 11 तक। 11 के जो डिफरेंट जो रूल्स है, डिफरेंट केसेस है 11 के, और हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल जो है वो भी टॉपिक कवर हो जाएगा और फ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म ही हो गया आज के लेक्चर में, ठीक है? अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं वो हम करवा के लेंगे। दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए और मुझे बताइए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या कोई भी प्रकार का आपको कुछ चेंज चाहिए कोर्स में, अभी कोर्स तो बाइलिंगुअल चल रहा है, द कोर्स इज बाइलिंगुअल, राइट? सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी चलेगा। सो in this way हम सिलेबस कवर अप करेंगे। दिस वॉज एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।